مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم اپنی میٹنگ کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے۔ اے قدوس میرے پاس زندہ خداوند، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں آج کا دن دیا تاکہ ہم سب مل بیٹھ کے آپ کی شکر گزاری کر سکیں۔ میرے قدوس خداوندہ، جس ہمارے گزرے ہوئے وقت میں ہماری حفاظت کی، اسی طرح ہمارے آگے وقت میں بھی حفاظت کرنا خداوندہ۔ ہم سب کو چھوڑ برکت دے، میری اس دعا کو سن اور قبول کر۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہم مل کر خداوند کی پرستش کریں گے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی حمد و ثنا کے لیے بنایا۔ ہمارے درمیان سسٹر متیا ہے، وہ ہمیں ورشپ میں لیڈ کریں گی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ آج ہم سب ورشپ کریں گے اور زبور گائیں گے۔ دائم یہوہ یا رب، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے آندے تک تپ نہ ہے بچایا، تو واسطے آندے تک تپ نہ ہے بچایا، دنیا دا تو دنیا دا تو انصاف سچ، انصاف سچایا، رب سچیا دے، سچیا دے قوماں دے فیصلے سب، سچیا دے قوماں دے فیصلے سب، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، دکھیا دکھیا مکان یہوہ ہونا دے دکھ دے ویلے، ہونا دے دکھ دے ویلے ہے او نادی پناہ گاہ، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، آسو ندی ہے تو جب دے جو آسو ندی ہے تو جب دے جو جب دے جو نام تیرا، جوڑوں جوڑوں ہونا نو چھڈنا دیندا، جوڑوں ہونا نو چھڈنا دیندا، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے آندے تک تپ
ना है बिछाया। आमीन। आए हम सब इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए एक और ज़बूर गाएंगे। खुदावन नू उडीकदी रह। खुदावंद नू उडीकदी रह, आराम नाल मेरी जान। खुदावंद नू उडीकदी रह, आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है उम्मीद, दो मेरी है चट्टान। के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा काला है, ओ मेरी जान दा काला है, नजात पानागा, नजात पानागा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टालांगा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टालांगा। खुदावंद नू उडीकदी है, आराम नाल मेरी। खुदा थी मेरी है नजात, खुदा थी मेरी है नजात। है उस तो मेरे साथ, है उस तो मेरी साथ। खुदावंद मेरी पाना है जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद मेरी पाना है जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद नू उडीकदी रह, आराम नाल मेरी जान। आसो देऊ तेरा कोसा, आसो देऊ तेरा कोसा। ए ओ तो सदा, ए ओ तो सदा। झुकाओ दे आगे दिल के ओ है खुदा। झुकाओ दे आगे दिल ओ है खुदा। खुदावंद नू उडीकदी रह, आराम नाल मेरी जान। के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। आमीन। आए हम शुक्रगुजारी की दुआ दुआ खुदावन के हुजूर गुजराने। मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर जुमायरा से कि वो हमें शुक्रगुजारी की दुआ में लीड करे। आए हम दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है, सारी चीज़ों के लिए जो तूने हमें इस ज़िंदगी के अंदर बख्शी हैं। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस पूरे दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे हुजूर आ सके सारे मिल बैठ कर। मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो आज नहीं आ पाए, उनके लिए भी उनके साथ रहना। हमारे साथ साथ हम जिधर भी जाते हैं, इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में दे देते हैं। तेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी होना है हो। मैं शुक्र करती हूँ आज का जो भी कलाम होगा, दुआ करती हूँ तू हमें याद रखने में मदद कर। मैं दुआ करती हूँ हमारे ऐसे ही साथ रहे, हमारी ज़िंदगियों में बढ़ते जाए। आमीन।
اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت سنیں۔ میں درخواست کرتی ہوں سسٹر آسمیر سے کہ وہ خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ میں درخواست کرتی ہوں سسٹر ایمان بابر سے کہ وہ سرمن پریئر کرنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ قدوس 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 خداوند لشکروں کی خدا، آسمان اور زمین کے خالق میں باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو زندہ آسمانی باپ ہے، تو خیر کرنے میں دھیما اور تو شفقت میں غنی ہے۔ باپ جی تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں ان سب نعمت و برکتوں کے لیے۔ باپ جی تیرا شکر کرتے ہیں، باپ جی آج کے کلام کے لیے۔ باپ جی تیرے سے دعا کرتے ہیں، باپ جی تیرا پاک روح تیرے بندوں کے اندر سے ہو کے بولے باپ جی، اور باپ جی اس کلام کے وسیلے سے ہم 60 100 اور 30 گنا پھل لائیں۔ باپ جی تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اپنے بندہ کو لفظوں کی ترتیب بخشنا۔ باپ جی تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، سب کچھ مانگتے تیرے پیارے میٹھے اور جلال نام میں، آمین۔ آئے ہم خداوند کا زندہ پاک کلام سنیں۔ میں دعوت دیتی ہوں پاسٹر عاشر بشیر کو کہ وہ ہم سب کے ساتھ آج کا زندہ پاک کلام شیئر کریں۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے آج شام ہم سب کو جو پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم سب خداوند کی حضوری میں آ سکیں۔ ہم نے خداوند کی پرستش کی، دعا کی، خداوند کے پاک کلام کو جو ہے پڑھا۔ دیٹ از اے پریپریشن کہ ہم خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں۔ ہم ایوری ویک ایوری جو سیٹرڈے کو ہم آلریڈی ایک کلاس کا آغاز ہم نے جو کر رکھا ہے، جس کا نام جو ہے یوتھ مینٹرشپ ہے، اور اس کے اندر ہم بہت ساری ایسی باتوں پر ہم غور کر رہے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ آور لارڈ جیزس، کہ ہم خدا کی پرستش کس طرح کا ہم جو کر سکتے ہیں، ہم دعا کس طرح کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ آئی ایم جسٹ گیونگ یو دیٹ انٹروڈکشن کہ میں اور میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہاں پر آپ سب ہیں تو میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنا ٹائم آپ نکالیں اور اس جو ہے کلاس کا حصہ بنیں، اس عبادت کا حصہ بنیں، تاکہ آپ خداوند کو جان سکیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اسی حوالہ سے ہے، یہ جو ہے سوال آج کا جو ٹاپک ہے، ڈیٹی آف کرائسٹ، یہ بھی اسی جو ہے عبادت میں جو ہے ایک بیٹی نے اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں جو ذکر کیا کہ ہم کسی دن اس کے اوپر ہم بات کریں۔ تو آج خدا نے فضل بخشا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ڈیٹی کے اوپر بات کر سکیں، ہم اس کی جو فلنس کے اوپر جو ہے بات کر سکیں، اس کے جو گاڈ ہیڈ کے اوپر جس کو ہم الوہیت کہتے ہیں، ہم اس کی الوہیت کے اوپر ہم جو ہے بات جو ہے کر سکیں۔ اور خداوند کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا جو خداوند ہے ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو جو ہے سیکھ سکیں۔ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو ہم بند کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی جو ہے دعا کے جو ہے دوران اپنے آپ کو فلی جو ہے تیار کریں، فوکس کرنے کے لیے خداوند کے پاک کلام پر۔ آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کچھ بھی ہے، ڈونٹ فوکس، آپ خداوند کے کلام پر فوکس کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند آج شام میں تیری آواز کو سننا جو ہے چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ خداوند تو مجھ سے بات کر، خدا پاک رو تو مجھے لیڈ کر، خدا پاک رو آج خدا کے اس کلام کو، یسوع المسیح کو مجھ پر رویل کر، تیرے کلام کا بھید، تیری باتیں آج میری جو ہے زندگی میں اتریں، اور میں تجھے ایسے طور پر جو ہے وہ جانوں جیسے مجھے جاننا جو ہے ضروری ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے۔ خداوند تو ان بچوں سے بات کر، خداوند اس پوری جو اس یوتھ کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، تیرے کلام کو مانگتا ہوں خداوند ان کی زندگیوں پر۔ خداوند خدا آج تیرا پاک یہ کلام خداوند خدا جو تیرے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے ہے،
खुदा इनकी जिंदगियों में 100 गुना जो फल पैदा करे। खुदा आज ये कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे घराने के लिए हो, VOS की तमाम तर जो फैमिलीज के लिए, और तमाम तर जो अजीज जो हमें जो यूट्यूब पर देखते हैं या हमें जो फेसबुक पर जो देखते हैं, टिकटॉक पर देखते हैं, खुदा उनको भी ये फजल बख्शना कि वो तेरे कलाम को जो सुने, जाने, समझें और तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों। खुदा आज का ये कलाम तेरे खुदा इन बच्चों के खुदा ईमान को और ज़्यादा जो है मजबूत करे, और ये खुदा तेरी वहदानियत को, तेरी अलोहियत को अच्छे तरीके से जो है समझ सकें। यीशु अल मसीह के नाम में आमीन, 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 हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने हाथों को ऐसे ऐसे उठाएं और खुदा पाकरू से जो है कहें कि पाकरू आज ये कलाम मुझ पर जो है रिवील कर। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है कि मांगो तो तुमको जो है दिया जाएगा। अनटिल यू विल नॉट आस्क गॉड, ही विल नॉट गिव यू। जब तक आप खुदा को नहीं कहेंगे, वो आप पर अपने कलाम को रिवील नहीं करेगा। बड़ा खूबसूरत कलाम अभी हमने जो पढ़ा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। जब हम जो कलाम की बात कर रहे हैं, तो कलाम की का मतलब क्या है? यहां पर ये कलाम खुदावंद यीशु अल मसीह को रिप्रेजेंट करता है। खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही। जब हम कलाम की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम यीशु अल मसीह की बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह जो है कौन है? ही इज गॉड हेड, कि वो खुदा के उसकी हम देखते हैं जो है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा जो है रूल कुदस। जब हम खुदा बेटे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें यीशु अल मसीह नजर आते हैं, यीशु अल मसीह की वहदानियत नजर आती है, उसकी अलोहियत नजर आती है। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, हम डीएटी को क्या कहते हैं? डीएटी को कहते हैं गॉड हेड, कि खुदा का हिस्सा है ये। खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा का हिस्सा है, और इसको जो है समझने के लिए हमें कलाम मुकद्दस जो है किस तरह जो है वो गाइड करता है। क्योंकि जो कुलसियों उसके 2 बाब की 9वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर जो लिखा है कि अलोहियत की सारी मामूरी खुदावंद यीशु अल मसीह में सकूनत करती है। अगर आप निकालें मेरे साथ कुलसियों उसका 2 बाब, उसकी जो 9वीं आयत। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। सारी मामूरी यानी कि जो फुलनेस ऑफ गॉड खुदावंद यीशु अल मसीह में मुजस्सम होकर, खुदावंद यीशु अल मसीह बदन लेकर इस दुनिया में आ गए। और आज हम इसी के ऊपर हम जो है बात करने जा रहे हैं, इसी को सीखने जा रहे हैं कि खुदावंद हमसे जो है क्या कहता है। खुदा का पाक कलाम हमें जो है क्या जो है सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ऐसे जो है खुदा बनकर आ गए, और ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि हम आखिरी जो है दौर के अंदर हैं। बहुत सारी जो टीचिंग्स, फॉल्स टीचिंग, बहुत सारे जो ऐसी जो चीजें, ऐसे जो है नई नई जो तालीमात दुनिया के अंदर आ रही हैं। बहुत सारे लोग हमें जो है गुमराह भी जो है सम टाइम जो है वो जो कर देते हैं, हमारा ध्यान जो है भटका देते हैं। लेकिन आज का जो है ये टॉपिक जो है हमारे इमाम का बड़ा खास हिस्सा है, कि हम इस बात को जाने कि यीशु अल मसीह जो है पूरी जो है फुलनेस के साथ आए। यीशु मसीह को हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर एज ए जो मसाया, हमारे लिए जो है निजात दहिंदा जो है वो बनकर आ गए। यीशु मसीह ऐसे जो है खुदा बनकर इस जमीन पर उतरे, कलाम मुजस्सम हुआ, वो इस जमीन पर ऐसे जो है गॉड, ऐसे जो है खुदा बनकर आ गए। हम देखते हैं कि ही इज ओनली द वन, जो हम जिनको जो है बाइबल में हम देखते हैं कि खुदा के साथ हम उनको जो है देखते हैं एज ए जो फादर। और फिर हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ही जो है वो पाक रूह को भी जो है वो जो है भेजने वाला है, पाक रूह को भी इस जमीन पर जो है भेजने वाला है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अभी हम इसके ऊपर गौर करेंगे। फिर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर कि तमाम जो है वो चीजें यीशु अल मसीह के वसीला से ही जो है पैदा हुई हैं, और यीशु अल मसीह के लिए ही जो है पैदा हुई हैं।
फिर हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह खुद मुर्दों में से जो है वो जिंदा हो गए। यीशु मसीह को किसी ने जो है जिंदा नहीं किया, उनको जो है किया, यीशु मसीह जो है खुद जो है वो जिंदा हो गए। और यीशु अल मसीह ने बहुत सारे जो मुर्दों को भी जो है वो जिंदा किया। ये 7 जो है पॉइंट हैं, आज इनके ऊपर हम गौर करेंगे। अगर हमें टाइम अलाउ जो है करेगा तो हम इन 7 के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे जो है पहले हम देखेंगे खुदावंद यीशु अल मसीह को एज ए जो है खुदावंद यीशु अल मसीह को एज ए जो है गॉड, एज ए जो खुदा, हम उनको यहां पर हम देखेंगे। जैसा कि आज हवाला जो है पढ़ा गया यूहन्ना की अंजील, उसका जो है पहला बाब। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप जरूर निकालिएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। जो बच्चे इंग्लिश बाइबल जो पढ़ते हैं उनके लिए है ये, और जो उर्दू पढ़ सकते हैं वो अपनी उर्दू बाइबल को जरूर जो है खोलें मेरे साथ। और खुदा उनके पाक कलाम में क्या लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। बाइबल मुकद्दस इस बात को प्रूफ करती है कि यीशु अल मसीह खुदा है, था, है, वही जो आने वाला है। जीसस इज गॉड। यीशु अल मसीह जो है वो कामिल जो है खुदा है। यीशु अल मसीह जी जो है क्या है जी, कामिल जो है खुदा है। क्योंकि आजकल मार्केट में इंटरनेट पे बहुत सारी जो है फिलॉसफी आ चुकी है, बहुत सारी ऐसी ऐसी अजीब अजीब जो है अपना जो है फिलॉसफीज आ चुकी हैं, जहां पर हमारे लोग जो है बच्चे ईमानदार जो है गुमराही का शिकार हो जाते हैं। अगर गुमराह ना भी हो तो उनके माइंड में डिफरेंट तरह के जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये बात यहां पर ये हवाला खुदावंद यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट, यूहन्ना की जो है ये स्टेटमेंट इस बात को साबित करती है कि यीशु अल मसीह ही जो है वो खुदा है। जैसा कि लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यीशु अल मसीह मुजस्सम हुआ। 14 वर्स हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 1 उसकी जो 14 जो वर्स, वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल जो है देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये बात साबित करती है कि यीशु अल मसीह खुदा का बेटा बनकर इस जमीन पर आए, और वही जो है जलाल जो बाप में है, वही जो है जलाल हमें बेटे में जो है नजर आता है। दैट्स मीन सो द बोथ आर वन। ये बात इस चीज को साबित करती है, हवाला इस चीज को साबित करता है कि दे बोथ आर या वन। खुदा बाप, खुदा बेटा, उन दोनों का एक ही जो है वो जलाल है। और यीशु मसीह खुदा का वो कलमा, खुदा का वो कलाम मुजस्सम हुआ। ही बिकम अ फ्लैश। जब हम मुजस्सम की बात करते हैं, इसका मतलब है फ्लैश जो है बदन लेकर आ गए। यीशु मसीह जो है बदन की हालत में बदन लेकर इस जमीन पर आ गए। और आगे लिखा, ही ड्वेल्ट अमंग अस। वो हमारे दरमियान ठहरे रहे और हमने उनके जलाल को देखा। वो जलाल जो बाप के इकलौते का जो है वो जलाल है। जैसा जो है जलाल बाप का है, वैसा ही जो है जलाल जो है वो बेटे का है। उसमें कोई शक नहीं, कोई जो है कमी नहीं है उसके अंदर। जीसस इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए गॉड। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका जो है 20 बाब, उसकी 28 आयत। जॉन चैप्टर 20 वर्स 28। मेरे साथ निकालें, मैं भी आज आपके साथ जो है हवाले जो है निकाल रहा हूं ताकि हम इसको जो है पढ़ सकें, ताकि हमारे जो है दिलों के अंदर, हमारे कानों के अंदर, हमारे माइंड के अंदर कोई शक ना आ सके कि यीशु मसीह जो है कौन है। आज ईमानदारों को इस बात को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। हम यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, इट्स नॉट इनफ। हमें आज उसको मुकम्मल खुदा जानने की जरूरत है। हमें आज आगे बढ़ने की जरूरत है। यस, वी बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिलीज।
हमारे जो पेरेंट्स जो थे क्रिश्चियन थे, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। आज हमें खुदा को जो पर्सनली जानना है, शख्सी तौर पर। जब हम जो तौबा करते हैं तो हम अपना पास्टर साहब या पादरी जब अपना जो सहबान एवेंजलिस्ट इस बात को कहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा माने। शख्सी तौर पर जो है अपना जानने का क्या मतलब है? यू हैव टू नो हिम 101, फेस टू फेस। आप उसको जान सकें, समझ सकें, आप खुदा की वहदानियत को जान सकें, उसकी अलौहियत को जान सकें, उसकी डीएटी को जान सकें मुकम्मल तौर पर, हु ही इज। यहां पर लिखा है जॉन चैप्टर जो 20 वर्स 29, सॉरी जब वर्स जो 28, तूमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। तूमा ने यीशु अल मसीह को क्या कहा? माय लॉर्ड एंड माय गॉड। तूमा ने इस बात को जान लिया कि यीशु ही खुदा है। दैट्स व्हाई ही सेड। और जब उसने ये कहा तो यीशु ने आगे से इसको कोई रिएक्शन नहीं दिया। यीशु ने आगे से इसको कोई रिएक्शन नहीं दिया कि तू मुझे क्यों खुदा कहता है, बिकॉज ही इज गॉड। यीशु अल मसीह खुदा है, इसीलिए उसने आगे से जो तूमा को कोई जवाब नहीं दिया, तूमा के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। जब जब अगर जो है कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, जब जब जो है किसी ने यीशु मसीह के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, यीशु मसीह को कोई गलत जो है टाइटल देने, उनसे कोई गलत बात की, तो यीशु मसीह ने उनको वहां पर जो है झिड़क दिया, यीशु मसीह ने उनकी वहां पर जो करेक्शन की। आगे जाके हम और इसकी और भी हम डिटेल देखेंगे। हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि जो है तूमा ने खुदावंद यीशु अल मसीह को कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। उसने कहा कि तू मेरा खुदावंद भी है और खुदा भी है, तू बेटा भी है और बाप भी है। इसीलिए जो है कुलसियों में लिखा कि अलौहियत की सारी मामूरी खुदावंद यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। खुदावंद यीशु अल मसीह बदन लेकर इस दुनिया में आ गए और वो बाप का जो है जलाल बनकर इस दुनिया में आ गए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, he was perfect God and a perfect man। खुदावंद यीशु अल मसीह जो थे मुकम्मल जो थे खुदा थे और मुकम्मल इंसान थे। इंसान बनकर वो इस जमीन पर आए ताकि बाप के जलाल को जाहिर कर सकें, और उसी ने आपको भी इस जमीन पर भेजा है। उसने आपको जो चुना है। लास्ट वीक का मैसेज किसी को याद है? लास्ट संडे का? एनीवन? लास्ट संडे क्या मैसेज था? He chose us before the foundation of the world in him। उसने हमें अपने में चुन लिया ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों, हम खुदावंद यीशु अल मसीह की मानिद हों। और खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर बाप के जलाल के साथ उतर आए। हमें भी खुदा ने सिमिलर सेम फेस, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का था, हम भी वैसे ही हैं। खुदा बाप ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। खुदा ने हमें अपनी शबीह पर पैदा किया। और जहां पर यह वर्ड है कि खुदा ने, वहां पर वर्ड है एलोहीम। एलोहीम, एलोहीम ने, एलोहीम का क्या मतलब है? एलोहीम जो है उसका मतलब है खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। दे आर नॉट जस्ट वन पर्सन, दे आर थ्री पर्सन इन वन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस। फिर हम जो तीतस के खत के अंदर हम देखते हैं, वो तीतस उसका जो दूसरा बाब, उसकी जो 13वीं आयत, टाइटस चैप्टर 2 वर्स जो 13, वहां पर लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहे। दैट इज अ वेरी वंडरफुल वर्ड्स टू अंडरस्टैंड। यहां पर खुदा के खादम ने बयान किया, खुदा पाकरू ने हमें यह गाइडलाइन दी है कि उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहे। यानी कि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम जो है खुदा को देखते हैं, हम खुदा को देख सकते हैं इन जीसस।
बिकॉज वो खुदा के जलाल का परतो है, खुदा की पूरी जो है उसका जो मुकम्मल जो है जलाल, उसकी जो फुलनेस खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है एज ए गॉड। आपको समझ आ रही बात की? बट वी आर टॉकिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी बहुत सारे लोग ये कहें कि ये तो इट्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू आर नॉट दैट मच मैच्योर टू हैंडल ऑल दिस, लेकिन दिस इज अ टाइम टू हैंडल इट एवरीथिंग, क्योंकि खुदा का पाक रूह ये चाहता है कि वो आपको फीड करे, आपको गाइड करे, और खुदा का पाक रूह आज आपको ये रिवील कर रहा है। और इब्रानियों उसका पहला बाब 8वीं आयत, हिब्रू चैप्टर 1 जो वर्स 8, वहां पर लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा जो तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा। हालेलुया। बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। God and the Father, they are one in Christ। यीशु मसीह में वो दोनों एक हैं, वो दोनों एक हैं। Because for in Christ all the fullness of the deity live in bodily form। कुलसियों 2 बाब 9वीं आयत, अलोहियत की सारी मामूरी खुदावंद यीशु मसीह में सुकूनत करती है। We need to know that। आज हमें इस बात को अफर्म करना है। खुदा का कलाम आज हमें यह कंफर्मेशन दे रहा है, अफर्म कर रहा है कि यस जीसस इज गॉड। खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा है, उसकी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है, उसका जो तख्त है अब्दुल आबाद रहेगा, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर। अभी हम इसके ऊपर हम देखेंगे कि वो हमारा जो है खुदा है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी जो 3री आयत, यूहन्ना जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 लिखा है, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदावंद यीशु अल मसीह ने तमाम चीजों को बनाया है। ही इज क्रिएटर फॉर एवरीथिंग, ये ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, माउंटेन, एवरीथिंग इज मेड बाय जीसस। ये बात खुदा का कलाम साबित करता है। अगर कोई आपसे जो कहे, एंड यू शुड आंसर देम, जॉन चैप्टर 1 वर्स 3, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। दैट इज द एविडेंस। ये एविडेंस है। आप जब भी कभी बात करें, जब भी कोई आपको यह सवाल करे, यू कैन गिव देम दिस रेफरेंस। यस, बाइबल में लिखा है खुदा जो है उसने हम पर यह जाहिर कर दिया अपने कलाम के वसीला से। उसने हमसे ऑलरेडी बात कर रखी है, एविडेंस के तौर पर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी है कि ही इज क्रिएटर फॉर एवरीथिंग। इवन जो फरिश्तों को भी उसने क्रिएट किया। लिखा है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कोई भी चीज जो है खुदावंद यीशु अल मसीह के बगैर इस दुनिया में उसका जो वजूद नहीं आया, बिकॉज ही इज क्रिएटर, ही इज एलोहीम, बिकॉज they are three in one. God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit. They are one in Jesus. It's a little difficult, but we have to understand. फिर कुलसियों चैप्टर 2 वर्स 9, ये Colossians
चैप्टर 2 वर्स 9, क्योंकि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। खुदावंद यीशु अल मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया एज ए गॉड हेड, और उसमें सब कुछ सकूनत करता है। क्या जो है खुदा जो है मुजस्सम हुआ? क्या खुदा मुजस्सम हुआ? नो। ना हॉली स्पिरिट मुजस्सम हुआ? नो। कौन मुजस्सम हुआ? बेटा मुजस्सम हुआ, और वो खुदा की फुलनेस को लेकर, होली स्पिरिट की फुलनेस को लेकर, ऑल या पावर लेकर, सब कुछ लेकर इस जमीन पर आया। इससे पहले कि वो जमीन पर आता, ही क्रिएटेड एवरीथिंग, हेवन, अर्थ, यू, मी, एनिमल्स, प्लांट्स, galaxies made by him. He is the creator for every creation. And he is holy God. He created everything with his holiness. उसने कहा और हो गया. He said and everything is established. सूरज आज तक रोशनी दे रहा है. हजारों साल गुजर गए हैं. हजारों साल जो है गुजर चुके हैं, और सूरज आज भी अपनी रोशनी दिए जा रहा है। बल्कि अभी रोशनी पहले से ज्यादा हो गई है, गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है। चांद शारात को अपनी रोशनी दिए जा रहा है, बिकॉज ही अपॉइंटेड देम। उसने उनको अपॉइंट किया है कि तुमने जमीन पर रोशनी डालनी है। दिन के टाइम, रात के टाइम सूरज छुप जाता है, चांद सामने आ जाता है और हमें अच्छा फील होता है। दैट इज गॉड। ही क्रिएटेड एवरीथिंग। जीसस क्रिएटेड एवरीथिंग। और कोलोसियंस और कुलसियों, जब उसका जो पहला बाब वर्स 16 and 17, जस्ट यू सी दैट। कुलसियों उसका पहला बाब वर्स 16 and 17, वहां पर लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं। उसी में सब चीजें पैदा की गईं। हालेलुया। उसी में सब चीजें जो है पैदा की गईं। यीशु अल मसीह में सब चीजें पैदा की गईं। जैसा कि अभी हमने हवाला जो ऊपर हमने जब पढ़ा कि सब चीजें उसी के वसीला से जो पैदा हुई, और खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात को कंफर्म करता है, क्योंकि सब चीजें उसी में पैदा की गईं। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी। बहुत सारी ऐसी मखलूकात है जिनको आपने अभी तक नहीं जो है देखा, लेकिन दैट इज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड जीसस। कहा देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें हो या इख्तियार, सब कुछ, तख्त भी, बादशाहों को अपॉइंट करने वाला हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। और उसने आपको अपॉइंट कर रखा है, उसने आपको चुन रखा है कि आप उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, दैट इज अमेजिंग। लिखा है तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। सब कुछ यीशु अल मसीह के वास्ते पैदा किया गया है, ताकि उसके जलाल को जाहिर करें, ताकि यीशु अल मसीह का जलाल जाहिर हो, ताकि बाप का जलाल जाहिर हो। दैट इज अ बिग थिंग। सब कुछ उसी में पैदा हुआ है, उसी के वसीला से पैदा हुआ है। तख्त भी, रियासतें भी, हुकूमतें भी, इख्तियारात भी, आसमान भी, जमीन के नीचे की जो चीजें भी, पानी के अंदर कितनी मखलूकात है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम। ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। यहां तक कि हमारे मुल्कों के अंदर जो हुकूमतें बनती हैं, दैट इज ऑल मेड बाय हिम। हम समझते हैं शायद मैंने वोट दे के इनको जो है जिताया है। नो, दैट इज ऑल अंडर गॉड।
ही इज द किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। सारी जो है चीजें, हुकूमतें, रियासतें उसी के वसीला से आज भी जो है वजूद में हैं। ऐसे लोग जो उसके खिलाफ बातें करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, दे आर स्टिल या लिविंग बिकॉज हिज मर्सी, बिकॉज हिज या मर्सी, क्योंकि वो मर्सीफुल जो है गॉड है, बिकॉज ही इज क्रिएटर। और कोई भी जो है जो अपना जो है क्रिएटर जो है अपनी चीजों को जो है कभी भी जो है उनको जो है जो उनको बर्बाद नहीं जो है करना चाहता। वो चाहता है कि मैं इनको करेक्ट करूं, इनको मैं आज भी मौका दूं कि ये अपने आप को जो है करेक्ट जो कर सकें। ठीक है, और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब वो जो है चीजों से पहले है। बी केयरफुल, लिसन, लिखा है और वो सब चीजों से पहले है। और हमारी जिंदगियों में क्या है? लिखा है एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। हमारे लिए क्या, हमारी क्या जो है प्रायोरिटी है? मेरा काम, मेरे दोस्त, मेरी स्टडी, मेरा फला काम, मेरा ये काम, मेरा वो काम। अक्सर हमारे पास बहुत सारे उजर रहते हैं, ओ मैं इधर बिजी था, मैं उधर, तभी मेरे पास ये स्केड्यूल है, मैं दुआ नहीं कर सका, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। बट खुदा का कलाम क्या कहता है? ही इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। वो सब चीजों को कंट्रोल किए हुए है, रियासतें उसने बनाई हैं, हुकूमतों को उसने जो बनाया है, इस दुनिया के जो सिस्टम को चलाने वाला खुदा है। जमीन घूम रही है यीशु मसीह के हुक्म के वसीला से। ही सेड, कैसी बात है, जमीन घूम रही है और हमें पता भी नहीं, हमें 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 जो चलता है कि जमीन घूम रही है। दैट इज गॉड। उसने आपको इस जमीन पर कयाम बख्शा है ताकि आप उसकी अलोहियत की, आप उसके जो है मुजस्सम होने की, उसके जलाल की, उसके उसकी आप जो सताइश कर सकें, तारीफ कर सकें, यीशु नाम की तारीफ कर सकें, बिकॉज ही इज ओनली द वन नेम इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। लिखा है आसमान के ऊपर, सॉरी जमीन के ऊपर एक ही नाम जो है बख्शा गया, वो है यीशु नाम। यीशु नाम तमाम नामों से आला है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया है, सब कुछ उसके अंडर है। एवरी नी विल बाउ, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। देखा, वो सब चीजों से जो है पहले हैं और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। सब चीजें उसी के अंदर ही बढ़ सकती हैं, कायम रह सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। जो हुकूमतें, जो रियासतें, जो लोग खुदा में कायम नहीं रहते, उनका नामो निशान मिट जाता है। बाबुल का अपना बारे में किसको पता है? बाबुल के बारे में, बाबुल, बाबुल का अभी मौजूदा जो है कंट्री जो कौन सा आपको पता है? मौजूदा जो कंट्री जिसको कलाम मुकद्दस जब बाबुल कहता है, कौन है? एनीवन जी प्लीज? ईरान, ईरान नो, या इराक? इराक। इराक। इराक आज भी बर्बाद है बिकॉज खुदा ने कहा, खुदा ने उसके ऊपर जो कर्ज को ले आया, खुदा ने जो बात कह दी कि कोई इसको नहीं बना सकता, जब जब ये बनेगा बर्बाद हो जाएगा। और आप देखें अभी भी इराक जो है बर्बाद ही है ऑलमोस्ट। उसके बादशाह आए, हिस्ट्री ये बात बयान करती है, बादशाह आए, उन्होंने उनके अंदर फख्र आया कि हम इसके जब बनाने वाले हैं, हम इसको कायम करने वाले हैं। एंड दे आर नो मोर इन दिस अर्थ। उनका नामो निशान भी खत्म होता जा रहा है, यहां तक कि लोगों ने, उन बादशाहों से लोग आज हेट करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। जो यीशु मसीह में कायम रहता है, खुदा उसको बरकत पर बरकत जो है वो देता है, बिकॉज ही लिव इन अस। वो हम में रहता है। और जब हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसके कलाम को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, तो हम किस तरह हमारी जिंदगी में जब ब्लेसिंग्स आ सकती हैं?
और कुलसियों उसका पहले बाब के 18वें आयत में लिखा है और वही जो है बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में जो है पिलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। कलाम कहता है सब बातों में उसका जो दर्जा जो अव्वल हो। ही वॉज फर्स्ट बॉर्न, उसके वसीला से हमें निजात मिली है। ही इज बिगिनिंग, ही इज एंड, ही इज फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। जितने भी तक जो मरे हैं उन सब में फर्स्ट बॉर्न है वो। वही जो है वो मुर्दों में से खुद ही जिंदा हो गया और बाप के दानी तरफ जाकर बैठ गया। उसका जो दर्जा क्या है? अव्वल। लेकिन हमारी जिंदगी में उसका दर्जा क्या है? आखिर। वो खुदा क्या कहता है? उसका दर्जा क्या है जी? अव्वल है। और इंसान जो हम उसकी मखलूक है, हमारे लिए उसका दर्जा क्या है? आखिरी दर्जा। हम उसकी इबादत कब करते हैं? जब सोने से 5 मिनट पहले। हम अपना हदिया उसको कौन सा देते हैं? जो हमारे पास लेफ्ट ओवर हो। लेफ्ट ओवर हम उसको हम जो देते हैं, जो हमारे पास बचा कुचा होता है, हम सिर्फ उसको वो देते हैं। बट खुदा का कलाम क्या कहता है? सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो। अगर आज कोई शख्स मर रहा हो तो उसको अगर कोई डॉक्टर से बोले कितने पैसे ले आओ, तो ये बंदा जो है वो जीना शुरू हो जाएगा, तो लोग उतना पैसा अरेंज कर लेंगे। लेकिन ये बात नहीं जानते कि ही कैन रेज टू डेथ। वो मुर्दों को उठाकर खड़ा कर सकता है। वो जी उठने वालों में जो है पिलौठा है। वही है जो मर गया और तीसरे दिन जो है कब्र में से बाहर निकल आया, जी उठा। हमने उसका जलाल देखा और तोमा ने उसको कहा कि मैं तुझे चेक करना चाहता हूं कि तेरे हाथों में तेरे हाथों में जो सुराख है कि नहीं है। वो मुर्दों में से जो है जी उठा। इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है बाप को पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। खुदा बाप ने अपना सारा इख्तियार, सारी चीजें उसके हवाले कर दी, स्पुर्द कर दी। गॉड हैज गिवन हिज फुलनेस टू हिम। मामूरी उसी में सकूनत करती है। तो आप ये इसी चैप्टर की जो कुलसियों उसका पहले बाब की 9वीं आयत, सॉरी, जो पहले बाब की 19वीं आयत पे आप गौर करें। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर आप उसको वेरीफाई करें, क्योंकि कलाम क्या कहता है? लिखा है सब बातों में उसका दर्जा क्या हो? अव्वल हो। उसकी जो रीजन क्या है अव्वल होने की? क्यों उसका पहला दर्जा हो? क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। हालेलुया। बाप को यह पसंद आया क्योंकि वो ओबीडियंट रहा। वो ओबीडियंट था, उसने बाप की बात मान ली, वो ताबेदार रहा। उसने अपना जो करैक्टर लूज नहीं किया। शरीरों की राह में खड़ा होकर शरीर नहीं बना। ठठाबाजों की अपना मजलिस में जा नहीं गया, उनकी राहों में जा खड़ा नहीं हुआ। गुनहगारों के बीच में था, लेकिन फिर भी गुनाह से पाक था, ब्लेमलेस था। कोई उसके अंदर गुनाह साबित नहीं कर सका। क्योंकि बाप को पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। और खुदा बाप ने उसको सब चीजों का वारिस भी ठहरा दिया। इब्रानियों उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है। इब्रानियों, ये हिब्रू, ये चैप्टर 1 वर्स 2, चैप्टर 1 वर्स 2 लिखा है, इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। उसने खुदा बाप ने बेटे को सब चीजों का वारिस ठहरा दिया। क्यों उसको जो ठहराया? फिर यहां पर यह बात इस चीज को साबित करती है कि जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, इन जहानों को यीशु अल मसीह ने क्रिएट किया। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। जब भी कभी कोई आपसे पूछे, यू शुड या टेल देम या बोल्डली, यीशु मसीह ने इन तमाम जहानों को जो है पैदा किया।
यीशु मसीह इस जहानों का जो है बनाने वाला है। आलम उसके वसीला से पैदा हुए, कायनात उसके वसीला से पैदा हुई, रियासतें हुकूमतें उसी के वसीला से हैं। लिखा है, और तीसरी आयत में लिखा है, वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे जो बाला पर जो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा के जात का नक्श, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान आकर ठहरा। उसने वही वही जो कलाम जिसने इस जहान को तख्लीक किया, जहानों को बनाने वाला, इन जहानों का मालिक और खालिक हमारे दरमियान, इंसानों के दरमियान आकर ठहर गया। और हमने उसको कौन सा जो उसको हमने उसको जो दर्जा दिया, आखिरी दर्जा, अव्वल नहीं। मुबारक है वो जो उसको फर्स्ट जो है प्रायोरिटी उसको देते हैं अपनी लाइफ की, नॉट लास्ट, नॉट आपका बचा कुचा टाइम, नॉट आपके बचे कुचे जो है पैसे। ही डोंट लाइक दैट बिकॉज ही इज गॉड। उसको आपका रुपया पैसा नहीं चाहिए, वो जस्ट आपके जो है नीयत को देखता है कि आपकी नीयत क्या है। ही डोंट वांट योर मनी, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। खुदा को आपका रुपया पैसा नहीं चाहिए, खुदा को आपका वक्त भी नहीं चाहिए, आपकी प्रस्तिश भी नहीं चाहिए। आपकी प्रस्तिश उसके शान के मुताबिक नहीं है, उसको वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज आसमान पर हर वक्त फरिश्ते कहते हैं, पाक है तू, पाक है, कदूस 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 बोलते रहते हैं, उसकी पाकीज़गी को बयान करते रहते हैं हर वक्त 24/7। हम कितनी देर करते हैं? एक गीत गा के, दो गीत गा के, तीन गीत गा के, फिनिश, एंड। हाउ यू एक्सपेक्ट कि वो हमारी इस वर्शिप को अपनी हुजूरी में कबूल फरमा रहा है? हमारे इन टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी मिस अलाइन जो हमारी जो है रागों को या तर्जों को, किस तरह वो अपनी हुजूरी में कबूल जो है फरमाता है? वो हमारी नीयत को देखता है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। जिस तरह मां बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, चाहे वो जो जैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जो काना हो, थथला हो, जो भी हो, किसी भी हालत में हो, एबनॉर्मल भी हो, तो मां बाप अपने उस बच्चे से उतना ही ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमसे मोहब्बत रखते हैं ताकि हम उसकी अलोहियत का बयान कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को मुबारक कहें। इन जहानों का बनाने वाला, आलमों को पैदा करने वाला, देयर इज ओनली वन, हिज नेम इज या जीसस। अलोहियत की सारी मामूरी खुदावंद यीशु मसीह में सुकूनत करती है। आमीन। बिकॉज ही इज ओवर या क्रिएटर, उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने हाथों से क्रिएट किया है। एंड ही इज वन विद हिज फादर, ही इज वन विद हिज फादर। कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करता है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, हमने पहला पॉइंट अभी हमने क्या देखा? हमने पहला पॉइंट देखा एज ए गॉड, कि वो जो है खुदा है। दूसरा हमने पॉइंट क्या देखा है? कि वो हमारा जो है क्रिएटर है। अभी तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, ही इज वन विद द फादर, वो बाप के साथ एक है। बाप और बेटा दोनों एक हैं। ये डीएटी है ऑफ, ये जो है खुदावंद यीशु मसीह की अलोहियत है, उसकी वहदानियत है विद गॉड हेड। अभी मैं देख रहा था कि रायन ने एक जो है उसने चैट बॉक्स में एक मैसेज लिखा है, थाउजेंड्स ईयर, दैट्स मीन 4.5 जो है बिलियन ईयर अगो। हालेलुया। इट्स नॉट रिटन इन बाइबल, लेकिन आई अप्रिशिएट रायन, खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे। बाइबल में नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू द बाइबल वी आर इन
last year. खुदा ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, एक दिन 1000 साल के जो अपना जो है बराबर है, और अभी तक ज़मीन और आसमान को बने हुए एक ऑलमोस्ट टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है। 7वां दिन आराम का दिन है, एंड जीसस इज कमिंग वेरी सून। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें, लोगों को देखें, सो देयर इज अ सो डिफरेंट या टीचिंग, वी विल टॉक वन डे ऑन दैट एज वेल। अभी हम देख रहे हैं एज वन विद द फादर, कि वो खुदा बाप के साथ एक है, ही इज वन इन गॉड इन द फादर। कलाम मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी, हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम को, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब, जॉन चैप्टर 10 वर्स 33, वर्स जो है वो 30 से हम देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, द गॉड सेड, यीशु मसीह, द जीसस सेड, आई एंड द फादर आर वन। यीशु मसीह ने बात कही, आई एंड द फादर आर वन, मैं और बाप एक हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा, दैट इज एविडेंस कि बाप और यीशु मसीह एक हैं। 31 वर्स के अंदर लिखा है, यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए, बिकॉज दे वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज डीएटी। वो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे, वो फादर को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे। दे वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग एलोहीम। वो एलोहीम को कहते हैं कि वो खुदा है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे विल नॉट एक्चुअली, उन्होंने उसको मिसअंडरस्टूड किया। यहूदियों ने, वो शरा के आलम थे, उन्होंने कहा कि ये कैसी बात कर रहा है, अपने आप को खुदा के बराबर कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं ही खुदा हूं। जब उन्होंने, आज भी इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, आज भी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको कलाम की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो बहुत सारे गलत गलत आगे से क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहस का सबब जो है बनाते हैं, ताकि किसी तरीके से हम अगले बंदे को हम जो है गिरा सकें, हम उसको दिखा सकें कि नहीं, हमें तुमसे ज्यादा इल्म है। ठीक है, यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर जो पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम जो है दिखाए, बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के वो सबब से मुझे संसार करते हो। यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है, मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम जो है दिखाए हैं। जो काम बाप करता है वही जो है बेटा करता है। अच्छे काम बाप करता है, बेटा भी अच्छे काम करता है। जस्ट गौर कीजिएगा चंद सेकंड्स के लिए, क्या हम भी उसके बेटे हैं, अच्छे बेटे और बेटियां? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या हम भी जैसे काम बाप ने हमें कहा है या बेटे ने हमें कहा है, क्या हम भी वैसे काम कर रहे हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अस। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैंने कौन सा ऐसा जो है गुनाह किया है, कौन से ऐसे ऐसे मैंने ऐसा काम मैंने वो किया है कि तुम मुझे संसार करते हो। ठीक है, उनमें से वो किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो। यहूदियों ने उसे जो जवाब दिया, अच्छे काम के जो सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। कहते तेरे अच्छे कामों के सबब से हम तो संसार नहीं करते। क्यों? क्योंकि तू अपने आप को खुदा के इक्वल कहता है, बिकॉज दे वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा होली स्पिरिट। और आज यू आर योर ब्लेस्ड वन, कि आज हमें खुदा ने फजल बख्शा है कि आज हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकें, जान सकें, पाक रूह की जो है कुदरत के वसीला से। पाक रूह हमारा जो है रिवीलर है, पाक रूह हम पर ये बातें रिवील करता है, आश्कार करता है, ताकि हम खुदा को जान सकें। आमीन। ओ आई जस्ट सॉ द टाइम। हालेलुया। आखिरी आखिरी वाला हम जब पढ़ेंगे, और आज का
आज के लिए अब हमने जो है इन 3 बातों पे का हमने जो जिक्र किया है, इनको हम जो है नेक्स्ट वीक में हम फिर देखेंगे। हम देखेंगे एक और आखिरी वाला, यूहन्ना की इंजील, उसका जो है 14वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। जल्दी से हम इसको निकालेंगे और देखेंगे। उसके बाद हम आज की इस इबादत को हम जो क्लोजिंग की तरफ हम लेके जाएंगे। हालेलुया। 14वां बाब, उसकी 9 और 10वीं आयत। वहां पर लिखा है, यीशु ने उसे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उसने बाप को जो है देखा। तू क्यों करो कहता है कि बाप को हमें जो है दिखा? जिसने यीशु को देखा उसने खुदा बाप को देखा, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ही इज द फुलनेस ऑफ द गॉड। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मुकम्मल मामूरी है। खुदावंद यीशु अल मसीह में खुदा बाप, खुदा बेटा, ये तीनों एक हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हम में सकूनत करता है। जस्ट रिमेंबर फॉर दिस डे, खुदावंद यीशु मसीह मुझ में और आप में सकूनत जो करता है या करना चाहता है। उस वक्त जब हम खुदावंद के इस कलाम पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियां हम जो गुजारेंगे, देन ही विल लिव इन अस। और फिर हम खुदा का जलाल हम भी उसी तरह जाहिर करेंगे जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने बाप का जलाल जाहिर किया, हम भी उसका जो है जलाल जाहिर करेंगे। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जैसा कि आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से हमने देखा है कि वो हमारा जो क्रिएटर है, वो बाप के साथ वन है, वो एज ए जो खुदा हम देखते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा बनकर, कामिल खुदा बनकर, बदन लेकर इस जमीन पर आए ताकि बाप के जलाल को जाहिर करें, खुदा के जलाल को जो है वह जाहिर करें। और हम खुदा के जलाल को यीशु अल मसीह में हम जो है देखते हैं। फिर हमने देखा कि ही इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। खुदा ने सब चीजों को जो है क्रिएट किया। खुदावंद यीशु अल मसीह की बात कर रहा हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने सब चीजों को जो क्रिएट किया, वो सब चीजों का मालिक और खालिक है। और तीसरी चीज हमने देखी कि ही इज वन विद द फादर, कि फादर और जो सन जो दोनों जो एक हैं। और इसीलिए जो है खुदावंद यीशु अल मसीह ने फिलिप्पस से कहा कि तू मुझे क्यों कहता है कि हमें बाप को जो है दिखा, क्योंकि बाप और मैं एक हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टॉपिक रहेगा खुदावंद यीशु मसीह की जो डीएटी को लेकर हम देखेंगे कि एज ए जब मसाया उसको देखेंगे, कि हम देखेंगे कि वो किस तरह जब मुर्दों में से जो जिंदा हुआ, उसने किस तरह अपने आप को जो है उसने जो जिंदा किया, और उसने कितने मुर्दों को जो जिंदा किया। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से जो है मामूर करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर आशा बशीर। आए हम सब इस खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ इवेंजलिस्ट साबर से कि वो बीमारों के लिए दुआ करें। अब आप यीशु के नाम में खुदावंद, तू जो कादिर मुतलिक है, तू जो रब्बुल फाज है और तू जो फतहमंद है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए कि तू जो खुदावंद अपने कवि और मुबारक हाथ को अपने लोगों पर बढ़ाता है और अपने दस्ते मुबारक को बढ़ा कर खुदा ऐसा फजल उन पर करता है कि तेरी हजूरी के अंदर आकर तेरी मदद सुराई करें, तेरी सताइश करें, तेरी बंदगी करें, तेरी पूजा करें और तेरे नाम को मुबारक करें। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद उन जिंदगियों के लिए खुदा मैं दुआ गो हूँ जो बीमारी की हालत में है, दुख की हालत में है, तकलीफ की हालत में है। और खुदावंद जिन्होंने दरख्वास्त की है तेरी हजूरी के अंदर, उन पर खुदा तेरे मुबारक हाथ को चाहता हूँ, तेरे पाक लहू को चाहता हूँ। खुदावंद तो अपनी कुदरत के वसीला से खुदा उन जिंदगियों के खुदावंद हर वो परेशानी, हर वो मुश्किल, हर वो बीमारी यस्सु के नाम से खुदा उन जिंदगियों से जाए और खुदा तेरी बड़ी कुदरत उन पर जाहिर हो। और खुदावंद इसी तरह तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, खुदावंद जो तेरे बंदा के वसीला से खुदा इन नौजवान बेटे बेटियों तक पहुंचा, इनके लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ताकि ये इसी तरह तेरे कलाम को सीखते रहें
और उस पर अमल करने वाले हो सके, और खुदावंद बहुत सी रूहों को जीतने का सौंप बनने वाले हो सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं व्यूज ऑफ फैमिली के लिए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने लोग इसमें खुदावंद एक स्पिरिट के अंदर हैं, उन सब पर तेरी बरकत तेरी फेवर को चाहता हूँ। सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर वॉइस जॉर्ज से कि वो दुआ रबानी पढ़ने में हम सबकी रहनुमाई करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। कलमात बरकत पास्टर आशिम बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। मिशमा मैरी, वेल डन, वेल जॉब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, स्टे ब्लेस्ड थैंक यू। एंड वॉइस, गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे। आपने फर्स्ट टाइम दुआ रुमानी को आपने जो पढ़ा है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने थैंक यू। जलाल से इस्तेमाल करे। तो थैंक यू एवरीवन आपकी पार्टिसिपेशन के लिए, और खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। पास्टर साहब, और गॉड ब्लेस यू, और भी जितने अजीज हैं, बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं, सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे। अगेन मिशमा